Hello students, in this video we will continue further with carboxylic acids. In the previous video what we had looked at was हम लोगों ने ये देखा था कि methods of preparation carboxylic acids को prepare कैसे किया जाता है. From this lecture onwards we will start off with physical properties and chemical properties of carboxylic acid. So सबसे पहले start करते हैं physical properties से. Now when we talk of physical properties, normally हम लोग दो चीजों पे फोकस करते हैं. One is the boiling point, second one is the solubility in water. Okay, तो इन चीजों पे अब let's try to understand these things now. So carboxylic acid जो होता है, carboxylic acid is RC double bond OH. Okay, now क्या होता है in gaseous state और so I'll write it over here. In gaseous state, basically I'll call this as vapor state, or in non-protic solvent. Non-protic solvent मतलब ऐसे solvents जो H plus ions आपको नहीं देते. Example benzene. Okay. ऐसे solvents के अंदर ये जो carboxylic acid होता है, carboxylic acid exists as a dimer. It is existing as a dimer. Dimer का मीनिंग क्या होता है? जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, these two molecules are attached to each other. So ये आपका एक मॉलिक्यूल हुआ and this is your second molecule. And these molecules are attached to each other through hydrogen bonding. Okay. So dimerization हो रहा है through hydrogen bonding. Okay, so that is why in gaseous state or in non-protic solvents carboxylic acids exist in the form of dimer. हम लोगों ने solutions and colligative properties में ये पढ़ा हुआ है कि acetic acid जो होता है CH3COOH in the presence of benzene or when it is dissolved in benzene it forms CH3COOH twice. ये dimer बन जाता है. So two molecules combine together to give one large molecule. हमने फिर यहाँ पे Van't Hoff factor कहा था, Van't Hoff factor 2 था. Okay, ये हमने solutions and colligative properties में पढ़ा था. Fine. Now let's try to understand this more. इसको और समझने की कोशिश करता है. So boiling point and solubility. So first let's talk about boiling point. Now if you see molecules of carboxylic acid, they can form hydrogen bonds between themselves and amount of hydrogen bonding. ऐसे और कौन से molecules थे जो hydrogen bonds बना पा रहे थे? हम लोगों ने पढ़ा था alcohols can form hydrogen bonds with other alcohol molecules. इस तरह से ये hydrogen bonds बना सकते हैं. But if you compare hydrogen bonds over here with hydrogen bonds over here, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होगी. यू हैव मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स. ओके, सो आई कैन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग is more extensive. Hydrogen bonding is more extensive in case of carboxylic acids. Acids के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है और एक्सटेंसिव होती है. So therefore I can say boiling point of carboxylic acid is greater than boiling point of alcohols. And हमने ये पढ़ाई है कि alcohols का जो boiling point होता है वो aldehydes, ketones, ethers, hydrocarbons इन सबसे ज़्यादा होता है. So alcohol का जो boiling point होता है it is more than aldehydes, ketones, ethers, hydrocarbons. तो इन सबके comparison में अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ही होता है एंड एसिड का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज्यादा होता है. सो यू कैन से दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एसिड इज मैक्सिमम. ठीक है. सो एसिड्स हैव अ वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट. ये आपको कहां पे दिखाई देता है पता है? कार्बोऑक्सिलिक एसिड, पहला ही मेंबर आप कार्बोऑक्सिलिक एसिड का दोगे HCOOH. नॉर्मली बाकी कंपाउंड्स के अंदर फर्स्ट मेंबर आर ऑलवेज गैसेस, बट यहां पे फर्स्ट मेंबर इटसेल्फ इज अ लिक्विड. ओके, सो बेसिकली फ्रॉम फर्स्ट मेंबर टू नाइन्थ मेंबर जहां पे 9 कार्बन एटम्स है वो सारे लिक्विड्स होता है
एंड 9 कार्बन एटम के बाद यू स्टार्ट गेटिंग सॉलिड्स, हमें सॉलिड्स मिलना स्टार्ट हो जाता है. कार्बोऑक्सिलिक एसिड्स then exist in the form of solid state. So I write till 9 carbon atoms the state is liquid state, and after 9 carbon atoms you have a solid state, wax like solids बन जाता है वो. ठीक है. So at least you have understood the concept of boiling point over here. Next let's talk about solubility. ये carboxylic acids are highly soluble in water. Oxalic acids are soluble in water. ना पानी में soluble होने के लिए पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनना बहुत जरूरी है. ना इफ यू लुक एट कार्बोऑक्सिलिक एसिड, कार्बोऑक्सिलिक एसिड के केस में क्या होता है, इफ यू लुक एट दिस RC डबल बॉन्ड OH, if I let's write H2O, this is your H2O. तो यहाँ पे this has a positive charge, this has a negative charge, this has a negative charge, positive charge, positive charge, negative charge. तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह से फॉर्म होती है. This H will be attached to this oxygen atom. This H can be attached to this oxygen atom. This H will be attached to some other oxygen of, मतलब ये RCOH को अटैच्ड होगा. ओके, इसके एक ऑक्सीजन को ये अटैच्ड होगा. सो यू कैन सी दैट देयर इज दिस एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड ड्यू टू दिस एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग वी कैन से दैट कार्बोऑक्सिलिक एसिड्स आर soluble in water. हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ओके, सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉरी फॉर द इंटरप्शन. So that is why carboxylic acids are soluble in water. अब जैसे जैसे क्या होता है कि कार्बोऑक्सिलिक एसिड्स का साइज बढ़ता जाता है, जैसे जैसे ये साइज बढ़ता जाएगा क्या होगा कि आपका R ग्रुप विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, एंड जैसे ये R ग्रुप इंक्रीज होता जाएगा ये इट विल डोमिनेट नाउ. एंड ये जो R ग्रुप अल्काइल ग्रुप होता है, दिस इज योर ऑर्गेनिक पार्ट, इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर. वाटर, और इसको हम लोग वाटर रिपेलेंट कहते हैं. एंड बिकॉज इट इज वाटर रिपेलेंट, व्हाट आई कैन से इज, मैं ये कह सकता हूं कि ये जो आपका R ग्रुप है, बिकॉज इट इज वाटर रिपेलेंट, बिकॉज इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर. ओके, जैसे जैसे R का ये अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता जाएगा, solubility of carboxylic acids will reduce. So I can say as R increases, solubility of carboxylic acid reduces. Solubility of carboxylic acid reduces. ठीक है? I hope this is clear to you. Now since अब हम लोग नेक्स्ट थिंग जो स्टार्ट करेंगे, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड. नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड, अब स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज से. द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट इज एसिड्स, है ना, तो दे विल हैव एसिडिक नेचर. सो एसिडिक नेचर of carboxylic acids. Okay, now it's a vast topic, extensive topic है. Okay, so इस पे डिस्कशन पे हमारा काफी टाइम निकल जाएगा. Now ये जो कार्बोऑक्सिलिक एसिड्स है, मैंने जब कल एसिड का सेक्शन स्टार्ट किया था तो मैंने आपको कहा था दीज आर ओवरऑल, आप देखने जाओ तो कार्बोऑक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं दीज आर वीक एसिड्स. ओके फाइन, बट आप सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंपेयर करोगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बोऑक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं. सो आई कैन से RCOOH आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स amongst organic compounds, but they are weaker
एज कंपेयर टू HCl, H2SO4, जिनको हम लोग कहते हैं मिनरल एसिड्स. सो मिनरल एसिड्स के कंपैरिजन में ये जो कार्बोऑक्सिलिक एसिड्स होते हैं, दीज आर वीकर. सो RCOOH आर वीकर देन मिनरल एसिड्स, mineral acids. So if you want to compare alcohols, phenols and acids, तो इनकी acidity जो है वो कुछ इस तरह से वेरी करती है. ओके जैसे अल्कोहल जो होता है इनके लिए Ka की वैल्यू होती है करीबन 10⁻⁻15 के आसपास. फिनॉल्स जो होता है दैट इज C6H5OH, इनके लिए Ka की वैल्यू जो होती है दैट इज अराउंड 10⁻10. एंड ये RCOOH कार्बोऑक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं इनके लिए Ka की वैल्यू होती है 10⁻5. सो Ka की वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी एसिडिक नेचर उतना इंक्रीज होता जाएगा. Ka हम लोगों ने आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, दिस इज नथिंग बट द डिसोसिएशन कांस्टेंट. सो बिकॉज कार्बोऑक्सिलिक एसिड हैज गॉट हाईएस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, ओके दिस इज मोस्ट एसिडिक. So acidic nature I can say that carboxylic acids का acidic nature phenols के comparison में ज्यादा ही होता है. एंड जैसे हमने पढ़ाई है phenols are more acidic than alcohol. Water जो होता है water is somewhere over here in between. Water यहाँ पे आता है. So phenols are more acidic than water but alcohols are less acidic than water. ठीक है, fine. Now if carboxylic acids are more acidic as compared to phenols and alcohols, तो क्या डिफरेंस है इनमें? ओके सो द डिफरेंस जो है वो आती है रिएक्टिविटी में. अल्कोहल्स जो होते हैं, अल्कोहल्स कैन ओनली रिएक्ट विथ, दे कैन ओनली रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स. जैसे अल्कोहल्स कैन रिएक्ट ओनली विथ, एक काम करता है मैं एक कॉलम बनाता हूं ताकि आपको टेबल बनाता हूं, आपको ये समझ में आ जाए. ओके let's say you have alcohols ROH, you have phenols C6H5OH, and third one is you have acids RCOOH. Okay. Now if we talk of active metals, when I say active metals are like sodium, potassium, magnesium. Okay, तो alcohols भी इनके साथ react करता है. Phenols also react with active metals and carboxylic acids also react with active metals. All of them will liberate hydrogen. I'll write it over here. Hydrogen is liberated. In all three cases. ठीक है, ये हम लोगों ने ये रिएक्शंस देखे हुए हैं. नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ NaOH, हम लोगों ने पढ़ा है कि अल्कोहल्स डू नॉट रिएक्ट विथ NaOH बट phenols react with NaOH. Okay, and carboxylic acids will also react with NaOH. Okay, so that is why we can say that ये जो phenols है they are more acidic than alcohols, क्योंकि phenols NaOH के साथ react कर सकता है, बट ये जो अल्कोहल्स होते हैं वो NaOH के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते. NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस. ओके नाउ फाइनली इफ वी कंसिडर टू वीक बेसिस लाइक Na2CO3 और NaHCO3, दिस इज सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट. ऑब्वियसली अल्कोहल्स तो बहुत ही वीक एसिड्स होते हैं तो ये तो रिएक्ट करेंगे ही नहीं. ये जो होते हैं फिनॉल्स ऑल्सो डू नॉट रिएक्ट विथ बोथ दीज कंपाउंड्स, बट कार्बोऑक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं दे रिएक्ट विथ बोथ दीज कंपाउंड्स. सो दैट इज व्हाई वी से दैट कार्बोऑक्सिलिक एसिड इट इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू फिनॉल बिकॉज दे कैन रिएक्ट विथ वीक बेसिस while phenols cannot react with weak bases. ठीक है, तो आई होप ये टेबल आप बना देना, इसको याद रखना. इट विल टेल यू कि कौन सा कंपाउंड किन किन रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट कर सकता है. ठीक है, ओके. नाउ द क्वेश्चन इज why are acids more acidic as compared to phenols? आपको याद है फिनॉल के केस में हमने ये कहा था
कि लेट्स से आप यहां से H हटा दो, तो H हटा दो तो व्हाट यू वुड गेट इज ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इस ऑक्सीजन पे चले जाएंगे. ओके, so if both the electrons, sorry, if both electrons go on this oxygen atom, oxygen will get a negative charge O minus. एंड मैंने आपको कहा था कि यहां पे बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनता है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ जाएंगे, ये दो यहां पे चले जाएंगे, सो यू विल गेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. एंड जब कभी ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनता है व्हाट वी से इज नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड. ठीक है, ये जो नेगेटिव चार्ज होता है वो डीलोकलाइज हो जाता है. नाउ डीलोकलाइज होने के वजह से ये जो आपका फिनॉक्साइड आयन है, देयरफॉर फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबिलाइज्ड, सो अगर जो मुझे और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो यहां पे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से होगा. यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, you will get double bond O. Okay. Now this is something that we have studied, और हमने यही कहा था कि ये जो इसको हम लोग कहते हैं, see this compound is behaving like an acid and this becomes a conjugate base. इसको हम लोग कहेंगे conjugate base. एंड ये conjugate base जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ओरिजिनल कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होगा. सो दिस कॉन्जुगेट बेस इज वेरी स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस एंड ड्यू टू दिस रीजन दिस एसिड बिहेव्स लाइक अ गुड एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड. ओके, या अल्कोहल्स के कंपैरिजन में फिनॉल्स आर मोर एसिडिक. सो योर रीजन वुड बी कि जो कॉन्जुगेट बेस है दैट कॉन्जुगेट बेस इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस. तो अगर जो ये इतना स्टेबल है तो why is this not more acidic? ये ज्यादा एसिडिक क्यों नहीं है इसके कंपैरिजन में, तो वो देखता है. लेट्स से व्हेन यू हैव RCOOH, यहां से ये H प्लस हटा दो. ना ये H प्लस हटा दोगे तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन एटम पे आ जाएंगे, सो यू विल गेट RC डबल बॉन्ड O माइनस. ओके, so this is, if this is your original acid, this becomes your conjugate base. Okay, इस conjugate base को कहा जाता है कार्बो ऑक्सीलेट एनायन. अच्छा, ना ये जो कार्बो ऑक्सीलेट एनायन है यहां पे कोई बेंजीन रिंग नहीं है, तो इस तरह का यहां पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है. बट यहां पे एक रेजोनेंस पॉसिबल है, दैट इज ऑक्सीजन के पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन इसके साथ शेयर कर सकता है, एंड साइमल्टेनियसली ये जो पाई बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन्स यहां पे चले जाएंगे. सो व्हाट यू कैन गेट इज यू कैन गेट अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच इज ऑफ दिस टाइप, C डबल बॉन्ड O माइनस. सो दिस हैज टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. ओके, एक ये स्ट्रक्चर है और एक ये स्ट्रक्चर है. ओके, नाउ इसके कंपैरिजन में यहां पे तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है ना, 4 या 5 स्ट्रक्चर्स हम लोग बनाते हैं, यहां पे 2 ही स्ट्रक्चर्स बनाते हैं हम लोग. बट स्टिल कार्बो ऑक्सीलेट आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन. दिस इज मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन. ओके, now let's try to understand this कि ऐसा क्यों होता है. The reason is because कि यहां पे अगर जो दो रेजोनेटिंग आप स्ट्रक्चर्स देखोगे तो दे आर एग्जैक्टली सेम. यहां पे C एंड O के बीच में डबल बॉन्ड है, C एंड O के बीच में डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है. बट आप वही अगर जो ये और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कंपेयर करो तो यहां पे आप देखो ना, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहां पे कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहां पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, यहां पे नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है. तो दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट इक्विवेलेंट, दीज आर
these resonating structures are not equivalent. Okay, but when you compare it with these two resonating structures, these are equivalent resonating structures. Equivalent resonating structures. एंड इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जहां पे होता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है. इफ यू हैव इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दे ब्रिंग इन मोर स्टेबिलिटी. ठीक है, तो ये एक रीजन हुआ कि ये जो आपका कार्बोऑक्सिलेट एनायन है, कॉन्जुगेट बेस है, ये बहुत स्टेबल क्यों होता है. द सेकेंड रीजन है, आप नेगेटिव चार्ज देखो, नेगेटिव चार्ज किस पे है, ऑक्सीजन पे है ना, एंड ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज जब होता है तो वो चीज स्टेबल होती है. सो आई राइट नेगेटिव चार्ज इज ऑन मोर electronegative so the negative charge is on, sorry for the interruption, the negative charge is on more electronegative oxygen atom. Now negative charge is on more electronegative oxygen atom, which means therefore structure is more stable. Structure is more stable. Now if you compare it stable, if you compare it with phenoxide anion structure, तो यहां पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है इट इज कमिंग ऑन कार्बन एटम्स ना. यहां पे आता है, फिर पैरा पोजीशन पे आता है, फिर वापस और तो पोजीशन पे आता है. सो इफ यू सी जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नहीं है. आपका सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो ऑक्सीजन है, बट यहां पे इन स्ट्रक्चर्स में नेगेटिव चार्ज जो है वो कार्बन एटम पे है. बट एज कंपेयर टू दैट ये कार्बोऑक्सिलेट एनायन जो है, इस कार्बोऑक्सिलेट एनायन में नेगेटिव चार्ज इज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम, एंड ड्यू टू दिस रीजन द स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल. सो स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर, ये कार्बोऑक्सिलेट आयन इस स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी है, इट इज ड्यू टू टू रीजंस. वन, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इक्विवेलेंट, एंड सेकेंड, नेगेटिव चार्ज इज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. सो बिकॉज कार्बोऑक्सिलेट आयन, ये जो आपका कॉन्जुगेट बेस है, दैट इज मोर स्टेबल. ये जो ओरिजिनल कंपाउंड होगा दिस विल बी मोर एसिडिक. ठीक है, दिस इज मोर एसिडिक. Okay. Moreover, now if you see over here, let's talk about RCOOH. Okay. If you remove H plus from this, मान लो ये एसिड की तरह बिहेव करता है, एंड इसमें से अगर जो आप H plus हटा दो, if you remove H plus from this, what you are going to get is RCOO minus. Correct? Now RCOO minus, it is an anion. यहां पे if I draw its structure, ये ऐसा कुछ है, डबल बॉन्ड O माइनस. अब ये नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन ऑक्सीजन एटम, ऑन दिस एंड दिस, इन दो ऑक्सीजन एटम्स पे कॉन्सेंट्रेटेड है. बट अगर जो आपको इस स्ट्रक्चर को और स्टेबल बनाना हो, तो स्टेबल बनाने के लिए आपको नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज करना होगा. और ओके, ना हमें ये तो समझ में आया कि हमें इस नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज करना होगा. डीलोकलाइज मतलब यहां से आपको नेगेटिव चार्ज को हटाना पड़ेगा. ना नेगेटिव चार्ज को हटाने के लिए आपको यहां पे किस तरह के ग्रुप्स चाहिए? यू नीड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे. यू नीड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स. सो नाउ आई कैन से दिस, अगर जो यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे, ये जो आपका कार्बोऑक्सिलेट एनायन होगा वो स्टेबल हो जाएगा. सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स विल स्टेबिलाइज, it will stabilize carboxylate anions, xylate anions. एंड अगर जो आपका कार्बोऑक्सिलेट एनायन स्टेबल हो गया तो एसिड विल बिकम मोर स्ट्रॉन्गर.
सो विल स्टेबिलाइज कार्बो ऑक्सीडेट आयंस एंड यहां पे मैं लिख सकता हूं कि दिस विल इंक्रीज द एसिडिटी. सो ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है दे विल इंक्रीज द एसिडिटी. ठीक है, ऑफ एसिड्स. सो आपको हमेशा ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स विल ऑलवेज इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ एसिड्स. एंड व्हाई विल दे इंक्रीज द एसिडिटी? बिकॉज दे विल स्टेबिलाइज कार्बो ऑक्सीडेट एनायन. एंड ये कार्बो ऑक्सीडेट जो आपका एनायन है, इसको स्टेबल कैसे करेंगे? ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेंगे, तो आपका नेगेटिव चार्ज जो है वो डीलोकलाइज और हो जाएगा. सो अगर जो आपको पूछा जाए कि व्हाई डू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीज एसिडिटी, द रीजन इज सिंपल. दे विल डीलोकलाइज नेगेटिव चार्ज, they will stabilize carboxylate anion and therefore they will increase the acidity of acids. तो जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है, those electron withdrawing groups will increase the acidity. इसका उल्टा क्या होगा? if you have electron donating groups will decrease the acidity. Donating groups reduce acidity. ये हम लोगों ने फिनॉल्स में भी पढ़ा था. And same thing is applicable over here. And electron withdrawing groups increase acidity. ठीक है. अब कौन कौन से ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होता है? सो जैसे NO2 होता है, इट्स अ वेरी गुड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. उसके बाद इफ यू लुक इनटू योर टेक्स्ट बुक्स में इन्होंने आपको ये एक ऑर्डर दी हुई है. यू हैव टू रिमेंबर दैट ऑर्डर. सो से फॉर एग्जांपल NO2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ये ग्रुप होता है CF3, फिर आता है CN, फिर आता है F, Cl, Br, I एंड फिर एंड में जाके व्हाट यू हैव इज फिनाइल ग्रुप C6H5 एंड फाइनली यू हैव H. ओके, सो दिस इज बेसिकली द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. ओके, ठीक है. नाउ हाउ टू यूज दिस? मान लो इफ यू हैव, ओके, लेट्स कंपेयर टू कंपाउंड्स CH2F COOH, CH2Cl COOH, CH2Br COOH. हाँ, इन तीनों में आपको सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा कंपाउंड है वो फाइंड आउट करना है. ना तीनों का स्ट्रक्चर सेम है, तो ओनली डिफरेंसेस यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे ब्रोमीन है. Now we know that fluorine is a stronger electron withdrawing group as compared to chlorine, and it is a stronger electron withdrawing group as compared to bromine. So I can write fluorine is most electron withdrawing in तीनों में, and bromine is least electron withdrawing. So because ये सबसे ज्यादा electron withdrawing group है, this compound becomes most acidic. ठीक है. सो ये आपका ऑर्डर होगा एसिडिक नेचर का. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. सो जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना वो कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होगा. सिमिलरली इफ आई हैव टू कंपेयर दिस CF3 COOH और CH2 NO2 COOH. Now if you compare these two acids, you can see that CF3 is more electron withdrawing. So if this is more electron withdrawing, obviously ये जो acid होगी, this will be a stronger acid. This is more acidic. तो वापस this is more acidic as compared to this. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम लोग देखेंगे वो ऐसा कुछ है. CH2F CH2 CH2 COOH. Second case में you have CH3 CHF CH2 COOH, and third case में you have CH3 CH2 CHF COOH.
and now you have to compare which one is most acidic. See, eventually आपको पता है कि यहां से ये जो H है वो H बाहर निकलेगा, राइट? तो आपका नेगेटिव चार्ज जो है वो यहां पे क्रिएट होना है. अच्छा, नाउ फ्लोरीन इज आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज के जितना पास में होगा उतना स्ट्रांगली नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एंड उतना ज्यादा ये कंपाउंड जो है आपका स्टेबल हो जाएगा. मतलब ये जो एनायन है वो आपका स्टेबल हो जाएगा. सो व्हाट आई कैन से इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना COOH के पास में होगा उतना उसका इफेक्ट ज्यादा होगा. सो दिस विल बी मोस्ट एसिडिक बिकॉज यहां पे फ्लोरीन इज क्लोजेस्ट टू COOH ग्रुप, and this will be least acidic. The reason is because fluorine is far away from COOH group. So यहाँ पे order of acidity इस तरह से होगी. This would be the order of acidity. ठीक है? So I hope you have understood this, that electron withdrawing groups will always increase the acidity. Electron donating groups जो है they will always decrease the acidity. There is something called as ortho effect जो आपको याद रखना है. ऑर्थो इफेक्ट ये कहता है कि when you have benzoic acid, okay, COOH, and when you have any group at ortho position, any group, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हुआ तो अच्छा ही है, बट ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो सकता है. मतलब सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ तो अच्छा ही है, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स दे विल इंक्रीज द एसिडिटी. बट ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ तो भी व्हाट विल हैपन इज द एसिडिटी ऑफ दिस कंपाउंड इंक्रीजेस. एसिडिटी ऑफ ये बेंजोइक एसिड है ना, बेंजोइक एसिड इंक्रीजेस. So please remember that if you have any group at ortho position, it can be electron withdrawing, it can be electron donating, then compound की जो acidity है वो हमेशा increase हो जाती है. Okay, this is called as ortho effect जो आपको benzoic acid में observe होता है. Is this fine? ठीक है. बाकी किसी भी पोजीशन से आपको ऑर्थो इफेक्ट नहीं मिलेगा. नाम ही ऑर्थो है ना, तो ये बस आपको ऑर्थो पोजीशन से ही आपको ऑर्थो इफेक्ट दिखाई देगा. ओके, बाकी पोजीशंस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ही होने चाहिए, वो ही एसिडिटी इंक्रीज करेंगे. ठीक है, थैंक यू.